हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। डिक्लाइन, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्लाइन है। चंद्रगुप्त II was succeeded by his son Kumar Gupta. The Chandragupta was succeeded. He is a son of the Kumar Gupta. Kumar Gupta is AD time is AD 415 to the 455. He was able to maintain the empire built of his father, but during the later part of the line, and there was a threat from to the Hunas of the Central Asia. After the occupy of battles of the Hunas is across the Hind Kush mountain and the enter of India. Their first attack during the reign was repulsed by the prince Sakundragupta. The Gupta is however could not be protect their empire for the long, and the success wave of the Huna is involvement to the made of the Gupta is very big. And this was only of the main factor which accelerated there is a disintegration of Gupta Empire. There is the most important here. The inscription issued by the Hunna and showed there is AD of 485 they had occupied eastern is a Malwa and the large part of the central India. Punjab and Rajasthan also passed into there is a hands. The first important rule of the Hunas is India was Turamana, who is acquainted to the area of sketching up to the Iran of near Bhopal in central India. His son Kurukala is a succeed. Himahinas head of the 515, he described his attacks as the tyrant and iconolist is both. There is the Yashodharman. Yashodharman of is a Malwa and is a Narsingh Gupta is a Baladitya of the Gupta century. Finally defected his is a Milhi Ruku, but is a discovered over to the Hunas and could not be received the Gupta Empire. Besides the Huna is the invasion, there is also is a gradual decline in the economical priorities. It is the indicated by the gold coin of the later Gupta ruler, which has a less of gold content and a more is alloys. He also noticed the gradually disappearance of coin in the coastal Gupta period. It led to the king of the make a payment in formal land rather than the cash. It is evidenced by the discovery of large-scale land grant and creditors and donating to the land of Brahmans and the officer. There is the most important here. The practice of giving land of religious and the scholar is a purpose in the life of the service as a direct to the state is a normally termed as a feudalism. Under this practice, the domain to one of who receive the great and who give to the right not only to collect the taxes but also to the minister has a donated land. And this creates a small pocket of the power try clearless to the expanded their sphere of influence at the cost of the ruling authorities. The decline of the Gupta Empire resulting in the emergence of the numerous ruling that centric in different parts of northern India, and the prominent among them were the Pushpabhuti of Thanesar and here a Makhuri of Kannauj and the is a Matrak. The Matrak of the Ballavi. Matrak of the Ballavi, there is the political sense in the peninsular India was no different. There is a Chalukya and Pallavs are emerged as a strong religious power in Deccan and the northern Tamil Nadu respectively. There is the most important here. पतन, आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय का पतन कैसे हो गया? ये जो चंद्रगुप्त हम पढ़ रहे हैं साम्राज्य, उसका पतन होने का कारण क्या था? कहते चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमार गुप्त हुआ। यानी देखा जाए तो विक्रमादित्य के पश्चात जो था कुमार गुप्त हुआ, जो कि 415 से लेकर 455 तक शासन पर अपना आरूढ़ हुआ। अपने पिता सबकी साम्राज्य की रक्षा करने में वह आराम में सफल रहा, किंतु उसके शासन के उत्तरदायित्व में मध्य एशिया में शासन कर रहे हुनों ने उन्हें चुनौती मिलनी आरंभ हो गई। यानी हुनों ने जो है इस पर बार बार जो है चुनौती देता था, बार बार आक्रमण करता था, जिसकी वजह से
कुमार जो है गुप्त के लिए बहुत ही कठिनाई बढ़ा दिया। बैक्ट्रिया पर आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत उन्होंने हिंद कुश पर्वत पर पार कर भारत में प्रवेश कर गए। हुनों का प्रथम आक्रमण राजकुमार जो है स्कंदगुप्त द्वारा विफल कर दिया गया, किंतु गुप्त शासक हुनों के उत्तरवर्ती आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए और बार बार के आक्रमण ने साम्राज्य को दुर्बल बना दिया और यह जो है गुप्त साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी घटकों में से मुख्य माना जा सकता है कि बार बार जो था हुनों के आक्रमण ने जो है चंद्रगुप्त के शासन को बिल्कुल ही हिला के रख दिया। उसका नींव जो था खत्म होने के कगार पे आ गया था और यही सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। हुनों द्वारा लिखे गए आलेखों से ज्ञात होता है कि सन 485 तक उन्होंने जो है मलवा अथवा मध्य भारत के बड़े हिस्से पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पंजाब तथा राजस्थान भी उनकी झोली में थे। हुन वंश का प्रथम चर्चित शासक तिरमन था, जिसने मध्य भारत में भोपाल के निकट ईरान तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर चुका था। उसका पुत्र जो था मेहरकुल सन जो है 515 में उसकी उत्तराधिकारी बना। आलेखों में उसका विवरण तनाशाह तथा क्रूर शासक के रूप में मिलता है। मलवा के शासक जो है यशोधर्मन तथा गुप्त शासक नरसिंह गुप्त जो है बलादित्य ने अनंत जो है मेहरकुल को पराजित भी किया, किंतु हुनों पर यह विजय भी गुप्त साम्राज्य का नया जीवन दे न सकी। हुनों के आक्रमण के अतिरिक्त आर्थिक समृद्धि में भी हर्ष होता चला गया। यह उत्तरवर्ती गुप्त शासकों के काल की मुद्राओं से भी हमें ज्ञात होती है, जिसमें सोने का मात्रा कम थी तथा मिश्र धातु की अधिकता थी, यानी सोना के प्योरिटी में भी यहाँ पर कमजोरी आ गई। हम गुप्तोत्तर काल में जो है मुद्राओं की क्रमिक जो है कमी भी पाते हैं और इसने शासकों के नगद राशि के स्थान पर भूमि के रूप में जो है भुगतान करने की प्रक्रिया को जन्म दे दिया। इस तथ्य का ज्ञान जो है ब्राह्मणों तथा अधिकारियों को बड़े पैमाने पर दान किए गए भूखंडों के अधिकार पत्र से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। कहते हैं धार्मिक तथा सांप्रदायिक उद्देश्य के जो है भूखंड दान के बदले शासन को सेवा प्रदान करने की परंपरा जागीरदारी प्रथा कहलाई और इस प्रथा के अंतर्गत दान पाने वाले व्यक्तियों को पात्र का संग्रह कर नहीं सके, बल्कि दान में प्राप्त भूमि के प्रबंधन का भी अधिकार दिया जाता था। इसमें विभिन्न छोटे शक्ति केंद्र के जन्म दे दिया, जिन्होंने शासन को चुनौती देने के लिए अपने प्रभाव को काफ़ी विस्तार कर लिया, यानी छोटे छोटे एरिया भी जो है राजाओं को जो है चुनौती देने के लिए तैयार हो गए। गुप्त साम्राज्य के पतन के जो है परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शासक वंशों का उदय हो गया, यानी हर क्षेत्र में अपने आप को शासक घोषित कर लिया, जिसके वजह से गुप्त साम्राज्य था बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे आ गया। इसमें प्रमुख रहे थानेश्वर के जो है पुष्पभूति, कन्नौज के मखौड़ी और बलभी की मैत्रक। देखिए ये सारे के सारे जो थे उसी तरह थे। आगे जो जीत हासिल किया वो मैत्रक थे, जिसके विषय में हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं गुप्त साम्राज्य को संभालना बहुत ही कुमार गुप्त के लिए संभव नहीं था और इसके वजह से ये साम्राज्य था जो था बिल्कुल विघटित हो गया और विघटित होने का सबसे बड़ा कारण जो था हुन का बार बार आक्रमण करने से जो था ये बिल्कुल ही खोखला हो गया था। इसका प्रमाण आपने समझ लिया होगा कि उस समय जो सोने के सिक्के बनाए गए थे चंद्रगुप्त के समय के अंतराल में, लेकिन अब जो थे उसमें मिश्र धातु का उपयोग करने लग गए, यानी सोना की प्रायोरिटी जो थी कमती चली गई। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण था उसके विघटन का। भारतीय प्रायद्वीपों में भी राजनीतिक परिषदता भिन्न जो है विभिन्न नहीं था। दक्षिण उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में क्रमशः चालुक्य और पल्लव जो है मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रकट हुए, यानी चालुक्य और पल्लव भी अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूती के साथ उत्पन्न हुए, जो कि जो है गुप्त साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारणों में से एक माना जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था चंद्रगुप्त की अत्यंत महत्वपूर्ण खत्म हो जाता है। उसके पश्चात जो हम आगे करेंगे मैत्रक करेंगे और जानेंगे उसमें क्या है। तो आप इसी तरह त्रिपाण से बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।